Please switch audio, mute your audio, please mute yourself. Yes, Devamita, I think you can start and let the people join. Okay, sir. Just a minute. Let's start the session with prayer. Stretch your spine. Close your eyes. Take a deep breath. Now join your palms and chant with me. Sahana bhavatu, sahano bhunaktu, sahaviryam karvavahi, tejasvinavadhitamastu, ma vidvishavahi. Om yogena chittasya padena vacham malam sarirasya chapaidakena yopakaruttam ravaram munidam patanjali matranjali. Feel the vibration of the mantra. Now rub your palms. Feel the warmth and rise with the sun. आज कुछ नोट्स देंगे, आप लोग थोड़ा कॉपी लेके बैठे हैं ना? यस। अच्छा, प्रेगनेंसी में मेडिटेशन का बहुत जरूरी होता है। मेडिटेशन क्योंकि हम लोगों का जो पूरा 9 महीना का जो ये है सफर है, उसको एकदम क्वाइट काम, पूरा माइंड को काम रखना है, क्योंकि डिलीवरी का भी एक प्रेशर रहता है। दिमाग में हमेशा चलता है कि कैसा होगा, कैसा डिलीवरी, कैसा सब कुछ ठीक होगा, बेबी ठीक है कि नहीं। ये सब के सब चीजों से अगर थोड़ा सा ये राहत देने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी होता है। और मेडिटेशन में हम लोगों को उनको पॉजिटिव अफर्मेशंस भी देना पड़ता है, और ये मदर्स के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस थोड़ा अलग है। तो वो पॉजिटिव अफर्मेशंस आप थोड़ा नोट डाउन कर लो। अच्छा, ये कनीज फतेमा एंड फतेमा सुल्ताना बोथ आर सेम? अच्छा, अलग।
Positive affirmations for pregnancy are the great way to prepare for childbirth. Positive affirmations are specific statements that are help you to overcome negative thoughts and create new pathways in the brain for positive mental, emotional and physical changes. जो इमोशनल फिजिकल चेंजेस होता है तो उसके लिए मेंटली भी प्रिपरेशन लगता है, तो उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बहुत जरूरी होता है. Your thoughts can create your reality and your thoughts can help you create an awesome and unmedicated birth. Now write down. और जो हम बताएंगे उसको थोड़ा सा ये थोड़ा सा सुन लो. हाउ टू गेट प्रेगनेंसी अफर्मेशंस टू वर्क. बिलीव व्हाट यू आर सेइंग. रिपीट रिपीट एंड रिपीट. उसको ही रिपीट करते जाना है. जो न्यूली जो मॉम्स होगी तो उसके पास हम लोगों को वो जो पॉजिटिव अफर्मेशंस है उसको रिपीट करते जाना है और उसको बिलीव करवाना है कि ये सच है. लीव द पास्ट बिहाइंड यू. यूज ओनली पॉजिटिव imagery. Engage your senses. पूरा सेंस को एंगेज करके करवाना है. Choose the best pregnancy affirmations. अच्छा, list of daily affirmations for pregnancy. Now write down. Number 1. I'm so grateful for this amazing pregnancy. Next, it is such an honor to be carrying this baby in my womb. Just a minute. The next is, I'm grateful for this important role as an expecting mother. Yes. फिर से बोलिए. I'm grateful for this important role as an expecting mother. Number 2 था, it is such an honor to be carrying this baby in my womb. और जो फिजिकल चेंजेस होता है तो उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस है. I love honoring my body. My body is a sacred temple of love and light.
I love taking care of my body and my baby. I love being very gentle and kind to my body. By taking care of myself, I teach my baby about self-worth and self-love every day. My baby and I are completely safe during every stage of my pregnancy. एक बार रिपीट करते हैं. My baby and I are completely safe during every stage of my pregnancy. I love to eat healthy, nourishing, and wholesome foods for me and my baby. I drink lots of water every day to hydrate myself for optimal health. Water, एक मिनट, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि बेबी जो होता है वो वाटर में ही रहता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी. तो हम जब पानी पियेंगे तो उसको वाटर को भी बताना है कि आई लव टेलिंग माई वाटर थैंक यू एंड आई लव यू बिफोर ड्रिंकिंग इट. ड्रिंकिंग के पहले, पानी पीने से पहले थैंक यू एंड आई लव यू बोलना है पानी को. ये मेडिटेशन में नहीं बताएंगे, पर इसको उसको बताना है, केयर टेकर को बताना है आपको कि ये आपको बता के फिर पानी पीना है. और जब वो लॉन्ग वॉक में जाएंगे, जब ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको वॉक भी करना है, ये भी आपको बताना है कि आपको थोड़ा सा वॉक भी करना है. तो वॉक के दौरान उसको ये बताना है खुद से, आई एंजॉय लॉन्ग रिलैक्सिंग वॉक so I may strengthen my uterus and stay in shape.
थॉट प्रोसेस को आपको उसको बताना है कि कैसे थॉट क्रिएट किया जाए। ये जो थॉट है ये सभी उसको शेप में आएगा। ये थॉट से ही हम बनते हैं। हमारा थॉट सही होना चाहिए। আরো একবার বলবেন, फिर से बोलिए। आई वॉकिंग पॉइंट क्या बोल रहा है? I enjoy long relaxing walks so I may strengthen my uterus and stay in shape. Richa Jalan ma'am, please switch on your video. I love having peaceful and joyful thoughts as often as I can. हमारा एवरी थॉट पीसफुल एंड जॉयफुल होना चाहिए। हम लोगों का सभी के लिए है ये। Next is I listen to my body and give it what it needs. My body and I communicate very well together. I take my time with important decisions, knowing that there is no need to rush. I take my time with important decisions, knowing that there is no need to rush. ये मेडिटेशन के एफर्मेशंस नहीं है, पर उसको बताना है when I don't feel comfortable with something, I speak my truth with confidence. अगर किसी भी चीज में वो कंफर्टेबल नहीं है तो उसको भी एक्सेप्ट करना है। सेल्फ एक्सेप्टेंस इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस। Can you repeat once again? When I don't feel comfortable with something, I speak my truth with confidence. Just one.
Next one, I listen to my intuition when it comes to my pregnancy and birth. I respect the decisions I make about this birth. I thank my baby every day for coming into my life. सभी एक साथ बताना नहीं है, एक एक दिन एक एक को बताना है। 5 पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको एक एक दिन रिपीट करना है, और उसके बाद जो करेंगे तो अलग होगा, इसके बाद जो करेंगे अलग होगा, फिर सेम रिपीट करते 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 वो सारा थॉट्स उसको माइंड में बैठा देना है। I honor myself for carrying this beautiful baby. I give my baby love by talking to him or her every day. I give my baby love by talking to him or her every day. I know that my body is extremely powerful. And next one is very important. I love connecting with my baby through my hands and my breath. Can you repeat the last one? I I love to love connect to my. connecting with my baby through my hands and my breath. I trust the people I have chosen for my childbirth team. उसमें आप भी एक हो, तो सभी के लिए ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है, ट्रस्ट रखना। I trust the people I have chosen for my childbirth team. I appreciate all the resources that I have when it comes to pregnancy and birthing. I appreciate all the resources that I have when it comes to pregnancy and birthing.
I deeply trust my intuition. I love my pregnant body. My baby and I are safe. I'm well prepared. ये थर्ड ट्राइमेस्टर में बताना है इसको. I'm well prepared for the birth of my baby. ये जो लास्ट महीना है उसमें आप बताएंगे इसको मेडिटेशन में. क्या था वो? I'm well prepared for the birth of my baby. और ये भी लास्ट ट्राइमेस्टर के लिए है. I'm so excited about this birthing experience. I cannot wait to meet my beautiful baby. I cannot wait. ये cannot ना ये omit कर दीजिए. Cannot नहीं बताना है. किसी भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं শোনা देना যাচ্ছে না। है. I'm হ্যাঁ, ठीक, किसी भी नेगेटिव स्टेटमेंट्स को नहीं देना है. You can write, I'm eagerly wait to meet my beautiful baby. Okay. तो ये हो गया सारा पॉजिटिव अफर्मेशंस ड्यूरिंग मेडिटेशन. ম্যাম এই সময় दिस टाइम बहुत लोगों को ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वो कैसे उसको करे, तो उसको नेगेटिव थॉट्स ना आए। हाँ, नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करके उसको पॉजिटिव करना है. नेगेटिव थॉट्स को उसको समझाना है, काउंसलिंग करना है. बहुत इम्पोर्टेंट है काउंसलिंग करना. एज अ टीचर उसके पास जाके उसको क्या क्या चीज से उसको किस चीज से सोर्स ढूंढना है कि सोर्स क्या है. ये जो नेगेटिव थॉट्स होता है ना उसके सोर्स होता है. वो सोर्स को समझ के उसको सही तरीके से उसको बॉडी से लेके ही, जैसे थोड़ा बहुत ऐसे होता है ना, बच्चा कभी कभी मूव करता है कि नहीं करता है, तो वो लेके माँ में बहुत वो होता है कि बच्चा तो कल हिला था आज नहीं हिला, या फिर 2 घंटे नहीं हिला, ऐसा बहुत कुछ होता है, तो वो मतलब लास्ट स्टेज में वैसे बहुत टेंशन करते हैं। स्ट्रेस हो तो जाते हैं, एंजाइटी इशू होता है. तो उसको हाँ। अच्छे से ब्रीदिंग और मेडिटेशन, ब्रीदिंग प्राणायाम, ये सब तो उसको लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत जरूरी होता है. ब्रीदिंग एंड प्राणायाम उसको करवाना है. और ऐसे पॉजिटिव थॉट्स को आपको उसके दिमाग में इनपुट करना है, देते जाना है. और डॉक्टर से हमेशा कनेक्टेड रहने के लिए बताना है कि किसी भी अगर प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से कनेक्ट करने के लिए.
These are the positive thoughts. और आज थोड़ा सा pelvic opening exercises और थोड़ा सा दिखाएंगे pelvic opening exercises जो second and third time Please sit on your mat. Today I will be opening exercises. Adhukonasana या फिर तितली आसन, butterfly. Sitting butterfly position. और अगर उसको अगर ऐसा किसी का ऐसा होता है ऐसा भी होता है तो ब्लॉक रख सकते हैं इसको अच्छे से सपोर्ट मिल जाएगा ब्लॉक्स का सपोर्ट से they can practice it. यहाँ पे ब्लॉक और यहाँ से पार्श्वजानुसिरासन, one leg open, straight spine, up, एकदम से chest opening भी है, and side stretch, lateral stretch, chest open plus pelvic open. Hold the posture for 5 breaths. 1, 2, 3, 4, and 5. Relax. Change करेंगे side change. और सीधा spine split. 1, 2, 3, 4, and 5. Relax. और यहाँ से विशिष्ट कोणासन, she can do विशिष्ट कोणासन. आप इधर अगर नहीं रख पाए तो यहाँ पे ब्लॉक करना है, बोल्स्टर भी रख सकते हैं. ऐसे ब्लॉक रख के या फिर बोल्स्टर रख के भी. This is also very good for pelvic region. 5 मिनट तक होल्ड करेंगे, 5 सांस तक. Inhale और exhale. 5, 4, 3, 2, and 1. Relax. Now, lie down on your side with the support of your hands. There is always gap for abdomen.
अनंत आसन में आएंगे, विष्णु पोज, अनंत आसन। यहाँ से वन लेग आप, का जो लेग है आप इसको फ्लेक्स करेंगे, फ्लेक्स हो गया, ये हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो गया, आपका स्ट्रेच हो गया फ्लेक्स से, तो एक्सटेंशन करेंगे तो ये अपर जो लेग है उसको स्ट्रेच मिलेगा, एंड फ्लेक्स, extension and down. There is no compression in abdomen. Abdomen को compress नहीं करना है, इसलिए posture. There is no tension in abdominal region. अगर उसको इतना तक उठाने में प्रॉब्लम हो तो इतना तक भी उठा सकते हैं, जितना वो कंफर्टेबल है उसको ऐसे ही करवाना है। Slowly side change करेंगे, change the side. The very slow transition, बहुत slow होना चाहिए transition. Next, extension. Please practice with me. दिमाग में रह जाएगा practice करने से। और one more, ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं, ज्यादा क्लोज नहीं आएंगे, ये भी करना है। अगर नहीं कर पाए तो स्ट्रेचिंग बैंड यूज करना है, इसको ऐसे पकड़ के रखना है। आप she can do with stretching बैंड लेके सपोर्ट लेके भी कर सकती है। अगर प्रैक्टिशनर है तो कर पाएगी, अगर प्रैक्टिशनर नहीं है तो दुपट्टा या फिर स्ट्रेचिंग बैंड से हो जाएगा। चेंज करते हैं साइड। और थर्ड के लिए है। बाहर भी करेगा, एब्डोमेन के पास ऐसे नहीं जाएंगे, ज्यादा एब्डोमेन के पास नहीं जाएंगे, फिर करते हुए इसको बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है। मैम जो रोटेशन करना है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही? हाँ जो रोटेशन कर रहे हैं ऐसे, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों करें? हाँ दोनों करें और 5 करके करवाना है, ठीक है, ज्यादा रिपीटेशन नहीं करना है,
only 5 5। और इसको अगर नहीं पकड़ पाए तो इसको होल्ड करना है स्ट्रेचिंग बैंड से। और ये वाला जो स्टैंडिंग जो आसन है इसको कहते हैं चतुष्कोणासन। वो भी बहुत अच्छा पेल्विक ओपनिंग आसन है। You can do it also। मैं करती हूँ। ये वाला इसमें ना साइड साइड का जो है ये साइड से लेके जाना है। ये अगर वो नहीं कर पाए तो उसको क्या करना है, यहाँ पे लेके जाना है बॉल के साथ। और यहाँ पे बैंड लेना है और बैंड से इसको एकदम साइड में लेके जाना है। फिर इसको ओपन करना है जितना तक ओपन कर पाए। अगर ओपन नहीं होता तो उसको इतना तक ही रखना है और ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, जो हम अनंत आश्रम में सो के किए वही स्टैंडिंग सेम। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के नहीं है और ऐसी स्ट्रेचिंग है ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, वो सपोर्ट से वॉल के सपोर्ट से स्ट्रेचिंग बैंड के सपोर्ट से दे कैन। और बहुत एक अच्छा प्रैक्टिस है, बहुत रिलैक्सिंग। में चले जाना है एक द वॉल अपर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन। अच्छा, ये कैसे जाना है इसके पास? एकदम पहले साइड एकदम पूरा साइड लेके साइड से होना है आपके पास। फिर हाँ, पूरा एकदम सीधा करके ऐसे सीधा करके नहीं उठाना है तो एब्डोमेन कंप्रेस हो जाएगा। एब्डोमेन कंप्रेशन नहीं चाहिए, एकदम सीधा बांधने का थोड़ा सा रिलैक्स करके एकदम रिलैक्स करके करना है। सीधा स्ट्रेट। ठीक है, होल्ड द पोस्चर हियर। और यहाँ से लेग ओपन आ चुकी है, लेग ओपन यहाँ से वहां ले बाहर की तरफ। सब आसन एक ही दिन में नहीं करवाना है। बाहर की तरफ, इसको बाहर की तरफ करेंगे, खोलेंगे और जब उठाएंगे तो पैर को करके उठाना है क्योंकि उठाने से एब्डोमेन एंगेज होता है। तो क्या करना है, सीधा जब नीचे जाएंगे तो एकदम स्ट्रेट जाना है। जब उठाएंगे तो पैर को खोल कर उठाना है। इसको रिपीट करेंगे 5 टाइम्स। एक्सरसाइज ज्यादा क्लोज रखिए तो हो सकता है कि एब्डोमेन कंप्रेस हो। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा डिस्टेंस में ही रखना है।
ठीक है, होल्ड किया, यहाँ पे होल्ड भी कर सकते हैं। होल्ड करके अगर अप एंड डाउन करना है उसको थोड़ा सा मुश्किल करेंगे, तो होल्ड कर सकते हैं इधर। 5 मिनट तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 and 5 चेंज। जब उठाएंगे तो एकदम फोल्डेड रहेगा, ये दिमाग में दूसरा साइड। 1 2 3 4 and 5 चेंज। यस, दोनों एक साथ भी हो सकता है। जितना तक हम जो बैठ के पूरी पगासन करते हैं वही कितना सब का 4 3 2 1 रिलैक्स। इसमें आपको बटरफ्लाई भी हो जाएगा, पोर्टियो ले बटरफ्लाई, वेरी कंफर्टेबल। 5 मिनट तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। जैसे कि सपोर्ट ऑफ वॉल हम सर्वांगासन भी कर सकते हैं। जैसे सर्वांगासन थोड़ा सा हिप को ऊपर करेंगे और ऐसे सपोर्ट करेंगे। मैम ये सर्वांगासन तीनों टाइमिस्टर में कर सकते हैं या फिर थर्ड में नहीं करेंगे? कर सकते हैं, तीनों ट्राइमेस्टर में हम बताएंगे। पहले आसन देखियो, हम आने के पहले सब करेंगे। पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो खुद से, ताकि खुद को मालूम हो कि किस चीज से एब्डोमेन कंप्रेस होता है और किस चीज से एब्डोमेन कंप्रेस नहीं होता। इसलिए खुद का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ही आपको पता चलेगा कि ये एब्डोमेन कंप्रेस हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं किया तो हमारा मेरा देखिए कुछ नहीं होगा, कुछ करने से पता चलेगा। होल्ड योर लेग, दोनों लेग के बीच गैप एंड पुश योर हिप अप। ब्रीदिंग लगाओ, करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में होल्ड नहीं एंड डाउन एंड स्लोली रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे एंड या रिलैक्स कैसे करेंगे, एकदम साइड साइड वाला क्वेश्चन दिखाते हैं। स्लोली वॉल के पास से उठेंगे, पूरा मूवमेंट बहुत स्लो होगा, जल्दी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ट्रांजिशन इज वेरी स्लो। लेफ्ट साइड में ये पैर इधर सीधा स्ट्रेट, इसको इधर रखेंगे थोड़ा दूर एंड दिस इज द पोस्चर। ठीक है, कोई भी एब्डोमेन कंप्रेस नहीं, कुछ भी टेंशन नहीं है, इधर कुछ भी प्रेशर नहीं होगा, बस इसमें रिलैक्स करना है। और ये बोल्स्टर या फिर साइड पिलो का जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। ऐसे करने से एब्डोमेन कंप्रेस होता है, इसको यहाँ पे ही रखना है। अब क्वेरीज ले लेते हैं। बताइए कौन क्या है? मैं बनी पूछ रही थी, हाँ जी, मैं पूछ रही थी कि जो
आपने अभी दिखाया ये तीनों में ही कर सकते हैं, तीनों नहीं, ट्राइमेस्टर में? सर्वांगासन जो दिखाए थे, सर्वांगासन और ये जो पेल्विक ओपनिंग आसनास है, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर के लिए है, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट के लिए नहीं है। फर्स्ट में ज्यादा पेल्विक ओपनिंग आसनास नहीं करना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 मंथ मिसकैरेज का चांस होता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा स्लो, एकदम कुछ भी रिस्क नहीं लेना है, स्लो जाना है। और ये जो सर्वांगासन और पेल्विक ओपनिंग आसनास दिखाया है, वो सारा एक साथ नहीं करवाना है, एक एक करके रिपीट करना है, एक एक दिन एक एक करना है। एक साथ देने से उसको प्रेशर ज्यादा हो जाता है, बॉडी का स्ट्रेंथ उतना तक तो नहीं होता, तो इलास्टिसिटी भी थोड़ा सा लूज हो जाता है अभी, क्योंकि रिलैक्सिंग हार्मोन ऐसे ही रिलीज होता है स्ट्रेचिंग के। स्ट्रेच तो ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, स्लो स्लो स्ट्रेच करना है, स्लोली एंड जेंटल, स्लो एंड जेंटल स्ट्रेच। और ये जो सर्वांगासन है, उसको हम लास्ट ट्राइमेस्टर का जो है उसको भी बता देंगे। अगर बेबी का हेड ऊपर होता है तो ये सर्वांगासन से उसका नीचे की तरफ जा सकता है, पर उसके लिए हमें 33 वीक्स और 37 वीक्स के बीच उसको करवाना है। इससे अगर ज्यादा हो गया, 37 के अगर ज्यादा हो गया तो नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए घूमने के लिए भी स्पेस चाहिए, और आफ्टर 37 वीक्स स्पेस नहीं रहता। यस। ये सब जब और थर्ड सर्वांगासन ट्राइमेस्टर के डिस्कस करेंगे तो बता देंगे। ओके, सर्वांगासन के अलावा और कौन से ऐसे आसन हैं जिससे जो हेड का पोजीशन है, जो आपने बोला अभी अप है, तो वो डाउन आए, और ऐसे कौन कौन से आसन हैं? अधोमुख स्वानासन है, जो इनवर्स आसनास होता है ना, अधोमुख स्वानासन, उससे भी हो सकता है, हम्म। पर वो हम सन सैल्यूटेशन सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अधोमुख स्वानासन हम कर सकते हैं, क्योंकि सन सैल्यूटेशन जो होता है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर के लिए अच्छा है। पेल्विक ओपनिंग भी है उसमें, स्पाइन के लिए भी हम्म। कैटन का स्ट्रेच भी है। और अधोमुख स्वानासन इज वेरी गुड फॉर योर शोल्डर स्ट्रेंथ, शोल्डर स्ट्रेच, पूरा स्पाइन स्ट्रेच होता है, पूरा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होता है, तो दीज आर वेरी गुड। क्योंकि जनरली सेकंड स्कैन जब होता है तब डॉक्टर टोल्ड कि हाँ, हेड का पोजीशन वो बता देते हैं कि इस पोजीशन में है। सो हम्म। वही मैं पूछ रही थी कि कौन कौन से आसन से हम उसको तब क्योंकि सेकेंड ट्राई कर ट्राइमेस्टर सकते में हैं ना करने। उसका सेकेंड ट्राइमेस्टर में ना उसको हाँ, स्पेस मिलता है बेबी को, तो वो स्पेस ऐसे मिलता घूमता है। है, नीचे एक बार जाता है, एक बार ऊपर आता है, एक बार साइड में रहता है, पूरा घूमते रहते हैं, तो उसमें हम सब कुछ कर हम्म। सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थार्ड का जो है, तो थार्ड का जो लास्ट जो है, लास्ट लास्ट 9 मंथ में अगर वो अंदर चला गया, 9 मंथ। 9 महीने के, तो अगर उसका हाँ, पोजीशन, तब बेबी का हेड फिक्स पोजीशन हो नीचे, जाता है। हेड हेड फिक्स हो गया, हाँ, हेड अगर नीचे है, तो हमको कुछ भी इन्वर्स आसनस नहीं करवाना कुछ है, भी नहीं करना। तो उसमें हमारा हम्म। हेड ऊपर जा सकता है। ये बहुत माइंडफुली करना है, ठीक है, थोड़ा समझ यस, के, थोड़ा यस। खुद का नॉलेज लेके। हम बता देते हैं आपको सब कुछ, पर आपको उसको, आपका नॉलेज भी आपको वहां पे लगाना है, एज पर डॉक्टर से। जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि अगर आपका बेबी का पोजीशन एकदम सही है, तो उसको सिर्फ लाइट स्ट्रेचिंग और मेडिटेशन और ये सब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाओ, और कुछ नहीं करना है। बेबी का पोजीशन हमें वहां पे इंटैक्ट रखना है, ताकि उसको इतना ये अधोमुख स्वानासन उसको भी, ये भी नहीं करवाना है। नहीं करवाना। हाँ, सिर्फ स्क्वाट मैम कर सकते हैं, अगर दैट टाइम सिर्फ अगर स्क्वाट ऐसा करेंगे, है कि क्योंकि वो जो सर्विक्स का जो मूव है उसको हमको ओपन करना है, तो उस खोलना टाइम हम है। सिर्फ यस, स्क्वाट हाँ। करवाएंगे। लास्ट में यही इम्पोर्टेंट होता है, हाँ, कि हाँ। नीचे खुल जाए सर्विक्स। हाँ फातिमा, कनिज, हाँ बताओ। हाँ, मैं बोल रही हूँ अगर अगर हेड, बेबी का हेड अगर पोजीशन में ना आए, तो हम पोजीशन में लाने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हाँ, हाँ, पोजीशन में लाने के लिए ये सारा इनवर्स आसनस करना है, सर्वांगासन करवाओ। इन्वर्स करेंगे। हाँ, इनवर्स करेंगे, या हम्म। फिर इनवर्स में शीर्षासन नहीं, हैंडस्टैंड भी नहीं, ये इतना ये हाँ, ये भी करना है। और लास्ट बट यू लास्ट नो जो व्हाट, प्रेगनेंसी का बिकॉज ऑफ बैच था दैट, ना, उसमें, हाँ हाँ, उसमें एक जन पूछे थे हाँ, कि अनुष्का शर्मा प्रेगनेंसी में यस। शीर्षासन किए थे। बिकॉज ऑफ दैट सेलिब्रिटीज का क्रेज है ना, तो हाँ एवरी वही। प्रेग्नेंट लेडी, कैन वी डू दिस, कैन वी डू दिस, बिकॉज नहीं, अनुष्का हमको शर्मा कुछ भी हैज रिस्क दैट, so नहीं कैन लेना वी है। डू दिस? You won't believe, when I was in my 6 month, I did it. अच्छा, तो ठीक सिर्फ है, तुम देखने तो के लिए कि होगा कि नहीं प्रैक्टिशनर हो, होगा। तुम कर सकते हो।
हाँ 6 मंथ्स में कर सकते हैं, पर लास्ट में ना थोड़ा सा एकदम रिस्क लास्ट नहीं में नहीं लेना कर है। सकते, हाँ। जस्ट बिकॉज ऑफ द क्यूरियोसिटी ओनली कि अनुष्का ने किया था, लेट मी ट्राई इट, तो धीरे धीरे करते करते मतलब कर लिया था। अच्छा, तो ये हमारा केयर सीकर से हम ये नहीं करवाएंगे, क्योंकि कुछ भी रिस्क नहीं लेना है। खुद का रिस्क हम खुद ले सकते हैं, हाँ, पर दूसरों का रिस्क हम नहीं ले सकते। नहीं ले सकते हैं, यस, हाँ। और ये सारा पेल्विक ओपनिंग आसनास एक साथ नहीं करना है। अगर 3 डेज का सेशन है तो उसमें थोड़ा सा डिवाइड करके उसको करना है। कल हाँ, भी दिखाए या थे। वन मोर थिंग कि जैसे जो भी क्लास करने आ रही है हमारे पास, तो हम उसको क्या रिकमेंड कर सकते हैं? 3 days अ वीक, 4 days अ वीक, 5 days अ वीक, और 6 days अ वीक, होल वीक लाइक शी कैन डू? होल वीक भी वो क्या कर बोल सकती सकते है, हैं? होल वीक भी वो कर सकती है, पर उसको तो तुम्हें ना ऐसे कस्टमाइज करना है कि ज्यादा पेल्विक ओपनिंग हम नहीं देंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए तो ज्यादा एकदम नहीं, ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन ही ज्यादा रखेंगे। और लाइट जेंटल स्ट्रेचेस एंड लूजनिंग एक्सरसाइजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो जॉइंट्स का एक्सरसाइजेस है, ये अच्छे तरह से करना है दिस टाइम, जॉइंट्स को। ऐसे रोटेशन, भी डिवाइड कर सकते हैं कि फर्स्ट चेस्ट ट्राइमेस्टर ओपनिंग। में 3 days अ वीक करो, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 4 days हाँ, करो, 4 डेज या करो, वॉट हाँ एवर हाँ। यू वांट। हाँ, और हाँ, थर्ड के जो लास्ट जो है, लास्ट में बहुत सारा स्क्वाट्स करना है। स्क्वाट्स तो करता ही है, ताकि सर्विक्स का मुंह जो है वो खुल जाए। हो जाए। ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए है। जो सी सेक्शन करवाएंगे, जिसका दिमाग में है कि हमको सी सेक्शन ही करना है, उसको कुछ भी पेल्विक ओपनिंग आसनास नहीं देना है थर्ड में। थर्ड लास्ट में, थर्ड में दे सकते हैं, 8 महीने तक दे सकते हैं। 9 महीने में अंदर जब जाएगा तो उसको कुछ भी पेल्विक ओपनिंग आसनास नहीं रहेंगे, क्योंकि उसका पेल्विक ओपनिंग आसनास करने से उसको नॉर्मल लेबर पेन आ सकता है। इसको भी समझना है कि किसी किसी का माइंड में होता है कि हम सी सेक्शन करें, हम लेबर पेन नहीं लेंगे, तो उसके लिए तुम्हें अलग से कस्टमाइज करना पड़ेगा प्लान। हीट बाथ और स्टीम बाथ ले सकते हैं क्या? स्टीम बाथ हीट बाथ। ज्यादा नहीं लेना है इस टाइम, क्योंकि नहीं, बहुत सफोकेटिंग होता है, सफोकेशन हो जाता है स्टीम बाथ। और ऐसे ही बॉडी को ज्यादा टेम्परेचर नहीं करना बॉडी है। हीट रहती है ऑलरेडी। हाँ, बॉडी हीट ऐसे ही रहती है, बॉडी को कूल डाउन करना है, कूलिंग प्राणायाम करना है। स्टीम बाथ नहीं रिकमेंड करना है। अगर हेयर स्पा करेंगे और फिर फेशियल करेंगे तब स्टीम दे सकते हैं, पर पूरा बॉडी के लिए नहीं है। और कोई क्वेरीज? मैम, हम लोग प्राणायाम में क्या क्या प्राणायाम करवा सकते हैं उनसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर्स में? अनुलोम विलोम इज वेरी सेफ। अनुलोम विलोम सबको करना, सब कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों हेमिस्फीयर जो है, हेड का जो दोनों हेमिस्फीयर है ब्रेन का, उसमें हम बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने से क्या होता है, पूरा जो माइंड है पूरा अलाइंड रहता है। तो अनुलोम विलोम इज द बेस्ट। भ्रामरी इज ऑल्सो वेरी गुड। ये एंड काम जो हम लोग फुल योगिक ब्रीथिंग करते हैं जिसमें एब्डोमिनल ब्रीथिंग, चेस्ट कर सकते हैं। हाँ, वो कर कर सकते सकते हैं फुल योगिक ब्रीदिंग। पर अगर प्रैक्टिशनर है तो योगिक ब्रीदिंग कर पाएंगे, एब्डोमिनल ब्रीथ कर पाएंगे। अगर प्रैक्टिशनर नहीं है तो उसके लिए उसको थोड़ा सा समझ के करवाना है। अगर लगे कि वो एब्डोमेन कंप्रेस कर रहा है तो उसको वो स्किप करना है। तो हम लोग फिर फुल योगिक क्लैविकुलर। ब्रीदिंग में तो हम एब्डोमेन कंप्रेस नहीं करते, हम सिर्फ एब्डोमिनल मसल्स को, डायफ्राम को ऊपर की तरफ देते हैं, ताकि हमारा चेस्ट में थोरासिक रीजन में ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स है उसको हम एंगेज नहीं करके सिर्फ एब्डोमेन मसल को एंगेज करते हैं, जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग है। पर ये जो प्रैक्टिशनर है उसके लिए ठीक है, और जो प्रैक्टिशनर नहीं है वो उसको समझ में नहीं आता, एक एक टाइम कंप्रेस कर देता है। तो हमको इसको थोड़ा सा समझ के करवाना है, देखना है कि वो क्या करते हैं, सही से कर पाते हैं या नहीं। योगिक ब्रीदिंग में हम लोग एब्डोमिनल ब्रीदिंग को स्किप करके क्लैविकुलर और थोरेसिक ब्रीदिंग करवाएं तो वो चलेगा? वो तो सेफ है। हाँ, क्लेविकुलर थोरासिक ब्रीदिंग कर सकते हो, क्लेविकुलर ब्रीदिंग कर सकते हो, एब्डोमेन भी करवा सकते हो, पर समझ के करना है। अगर तुम देखोगे कि वो सही कर रहा है तभी तो भी उसको देना है। अगर वो गलत करते हैं तो उसको कोई भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि एक एक जन होता है कि एब्डोमेन बहुत कंप्रेस कर दे,
हमारा यहाँ पे जो क्लास करने आते हैं केयर सीकर्स, तो उसमें भी ये होता है प्रॉब्लम जनरल में, कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग फास्ट समझ में नहीं आता है तो एब्डोमेन को कंप्रेस कर देता है। तो ये हमें नहीं चाहिए। प्रेगनेंसी में तो कुछ भी रिस्क नहीं लेना है। और चंद्रभेदन, हाँ, चंद्रभेदी कर सकते हो। सूर्य चंद्रभेदी इज वेरी गुड। सूर्य वेदन सूर्य एकदम नहीं कर सकते, सूर्य क्योंकि भेदी नहीं बॉडी हीट करता है। इंक्रीज होने से फेटस जो है उसको प्रॉब्लम होता है, वो ये हो सकता है, मिसकैरेज का चांस हो सकता है। तो सूर्य वेदन नहीं करना है। मतलब बेसिकली सारे टेम्परेचर को कूल रखना है। सारे सारे हाँ, कूलिंग करने हैं। और तो हम लोग मुद्रा में अपान मुद्रा नहीं करवाएंगे। अपान मुद्रा से क्या होता है, अपान वायु जो है वो नीचे की तरफ जाता है, तो हमें वो प्रेशर नहीं चाहिए। वो प्रेशर हम, हाँ, तो अपान अपान मुद्रा हम नहीं करवाएंगे। बाकी सारे और ना मुद्रास के लिए भी एक क्लास है, मुद्रास हम दिखा देंगे। बंधास, जलंधर बंध और नहीं नहीं, बंधास तो कुछ भी नहीं, कुछ भी बंधास अनंत नहीं। ब्रीदिंग को होल्ड करके कुछ नहीं करना है। ब्रेथ को होल्ड करके कुछ नहीं करना है। मेडिटेशन बहुत ज्यादा करना है इस टाइम। मेडिटेशन करवाओ और एक अच्छे से उसको प्राणायाम करवाओ, यही अच्छा होता है। लाइट स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग का जैसे मसाज और सिचुएशन चैंटिंग है भी वो करते एकदम हैं क्या? लाइट रखो। हाँ, मसाज और चैंटिंग, मसाज, बॉडी मसाज, बॉडी मसाज बॉडी कर सकते मसाज देखो, बॉडी मसाज ऐसे, बॉडी मसाज अगर करेंगे तो ऐसे सुपाइन पोस्चर में हमें बहुत देर तक रहना है, वो हम हैं। नहीं रह सकते। ठीक है, बॉडी मसाज में हम सुपाइन पोस्चर, ऐसे बैठ के तुम लेग मसाज कर सकते हो, हैंड मसाज कर सकते हो, ऐसे पीठ का मसाज कर सकते हो। पर एब्डोमेन का कुछ नहीं होगा, एब्डोमेन मसाज नहीं होगा। और बैठ के करना है, और ज्यादा प्रेशर भी नहीं देना है। चैंटिंग, मैं आई चैंटिंग, से समथिंग, चैंटिंग, एक बात हाँ, बोलना था बताओ। जिससे मुझे याद आया चैन कर सकते कि हैं। when I was अच्छा, एक she is एक saying देखो, something। रिद्धि कुछ बोलना चाहते हैं, सुन लेते हैं। शेयर हाँ, योर मैं ये बोल एक्सपीरियंस। रही, हाँ हाँ, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब आई बुक द सेशन ऑफ पेडिक्योर। तो मैंने थोड़ा सा अ, अ, सभी चीज कुछ भी कराने से पहले मैं एक बार रिसर्च जरूर करती थी। तो पेडिक्योर सेशन में देर इज सम पॉइंट, काफ मसल्स में हमारे एक कोई पॉइंट होता है, कोई जगह। ठीक है, अगर आपको उसकी जानकारी है देन इट्स ओके। अगर जानकारी नहीं है देन डू नॉट रिकमेंड एनी ऑफ द प्रेग्नेंट लेडीज अ पेडिक्योर सेशन, बिकॉज वो पॉइंट दबने से मिस कैरेज के चांसेस होते हैं। वो पॉइंट जो है कहीं पे वो यूट्रस का होता है। आई एम नॉट श्योर कि वो कहाँ पे होता है, कितने इंचेस में होता है। यू कैन गूगल अबाउट इट, बट मैंने ये मतलब सुना था। तो पेडिक्योर अगर कोई ले रहा है ना तो फुट का ले सकते हैं, और एंकल के अबव कुछ कहीं पे पॉइंट होता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट आई नो कि ऐसा कुछ है। है हील तो एक बार साइड में, इसका, और पॉइंट है यूट्रस का जो पॉइंट हील। तो बॉडी मसाज, अगर कोई बॉडी मसाज के लिए आए उसको रिकमेंड नहीं करना है बॉडी मसाज, क्योंकि हाँ बहुत, हाँ, अगर बहुत ये तब एक्सपीरियंस्ड है उसको तो हाँ उसके ना लिए हो, ठीक है। पर एक्सपीरियंस हमको ना हो पता तब नहीं तक कि नहीं हाँ, करना। एक्सपीरियंस है कि नहीं, तो कोई भी रिस्क नहीं लेना है। तो तुमको रिकमेंड नहीं करना है कि बॉडी मसाज करो। हम्म। फेशियल, हेयर स्पा तक ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि पैर सूजन होता है ना, तो लोग इस टाइप का करते हैं कि मसाज करा लो, कर लो ये। बट देर इज सम पॉइंट, आई एम नॉट श्योर। इसका तो मतलब एंकल मुझे के और नीचे थोड़ा तक मसाज, देखना पड़ेगा। मसाज हो सकता है, यस, एंकल के फुट ऊपर तक मसाज इज नहीं। फाइन। हाँ, हाँ, फुट मसाज इज फाइन। उसके ऊपर काफ मसल्स में कहीं पे है पॉइंट। अगर किसी को जानकारी है देन इट्स ओके, नहीं है तो डोंट गो फॉर इट। ठीक है, ये बहुत अच्छा एक जानकारी मिल गया। नाजिया, हाँ, और एनी मोर क्वेरी? अच्छा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, बहुत लोगों को हिप पेन, बैक पेन थोड़ा सा इशू रहता है। तो उनको हम लोग ये हॉट गर्म पानी के लिए मसाज बताएंगे, आई मीन सेक बताएंगे कि ठंडा, हॉट पैक या कोल्ड नहीं, पैक? हॉट और ये ल्यूकवार्म रखना है। बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके उसके अकॉर्डिंग ही उसका पानी ये होगा। ज्यादा हॉट भी नहीं होना है, ज्यादा कोल्ड भी नहीं होना है। पानी जो है वो ऐसे ही, सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं, पूरा थ्रू आउट। ज्यादा गर्म पानी से नहाना भी अच्छा नहीं है, ज्यादा ठंडा।
उसको एकदम बॉडी टेम्परेचर का जो है, बॉडी टेम्परेचर उसके ही अनुसार उस पानी होना चाहिए, वही रिकमेंडेड है। ओके। ठीक है, ऑल एनी ओके टिल नाउ। एक्सपीरियंस रिद्धि इन योर प्रेगनेंसी, ताकि हम लोगों को भी थोड़ा सा माय नॉलेज मिल जाए। एक्सपीरियंस वाज लाइक, हाँ मैं तो पूरे पूरे टाइम पूरे 9th मंथ एक्टिव थी, और आई यूज टू टेक 5-7 क्लासेस, 5-6 क्लासेस अ डे, एवरी डे। वेरी गुड। तो मेरे जो मेंबर्स थे वो सारे जो है नोन थे, तो दे नो अबाउट इट टिल टिल द टाइम आई लाइक वांटेड टू कंसीव। आई टोल्ड देम कि मेरा ऐसा ऐसा होने वाला है एंड आई एम प्लानिंग फॉर माई प्रेगनेंसी। तो जो चीजें मुझसे नहीं बनेगी या एब्डोमेन रिलेटेड चीजें जो मैं नहीं डेमो दे पाऊंगी, आई शो यू द पिक्चर। तो एक साथ में मैं लैपटॉप भी रखती थी और उसको मैं फोटो दिखा देती थी कि दिस, एंड वर्बली आई यूज टू गाइड इट। सो बस पूरे 9 महीने मैंने सिर्फ क्लासेस ही लिए हैं, वेरी गुड। खुद की भी तो तुम भी प्रैक्टिस एंगेज थे, है। तुम्हारा दिमाग भी सही सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एंगेजमेंट। तो अगर हाँ, एंगेज रहो ना तो तुम्हारा इधर उधर मन नहीं ये होगा, यस। और टेंशन भी जैसा नहीं आपने होता। बोला ना कि पानी, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई मस्ट से वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट 5 दिन बचे थे मेरी डिलीवरी को, डॉक्टर सेड कि नॉर्मल हो जाएगा, बट मेरा पानी सूख गया। आई डोंट नो, पानी जो है बहुत कम हो गया, और फिर उसके बाद में मेरा सी सेक्शन करना पड़ा। तो दिस इज द ओनली थिंग जो मुझे आज भी थोड़ा सा गिल्ट होता है कि थोड़ा सा और ध्यान दिया होता। बट एवरीथिंग वेंट फाइन, मुझे कोई नॉजिया नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई, नो बैक पेन, नथिंग। जो एक प्रॉब्लम होती है ना एक प्रेग्नेंट लेडी को, ये हो रहा है ये हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। इट वॉज अ वेरी वेरी गुड। जॉयफुल टाइम, वेरी वेरी जॉयफुल टाइम, आई एंजॉयड माई प्रेगनेंसी। अच्छा, वेरी गुड। तो तुम्हारा बेबी कितना है, कितना एज है? अभी 3.5 नाउ, 3 साल 5 महीने का, 3.5 साल लगभग। अच्छा, तो लॉन्ग वेरी बैक गुड। टाइम हो गया। आपका सी सेक्शन हुआ क्या? आपका हाँ सी हाँ, सेक्शन? सी सेक्शन, यस यस। सो वो देखो, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि पहले पहले से मन में नॉर्मल डिलीवरी ही सोच के नहीं रखना है। आज का टाइम ऐसा हो गया है, आज का फेज ऐसा हो गया है कि डॉक्टर्स इवन हाँ, डोंट डू, वही दे कुछ भी हो डोंट डू। सकता है। हाँ, तो पहले से मन में ये धारणा बना के नहीं रखना है कि नॉर्मल ही होगा, फिर लास्ट में आपको रिग्रेट होगा कि नॉर्मल के लिए इतना सारा हमने प्रैक्टिस किया, इतना पैसा लगाया प्रीनेटल के लिए, और अंत में ये हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो सकता है आज के टाइम में। सो इट्स जस्ट दैट कि यू एक्चुअली जस्ट प्रिपेयर योर प्रीनेटल, माइंड, एक्चुअली एंजॉय ये योर जो, जर्नी। हाँ उसको हाँ, बताना है कि ये जो प्रीनेटल योगा जर्नी है, ये तुम्हें पूरा जो ये फुल तीनों जो कोप ट्राइमेस्टर है, करने के इसमें लिए तुम्हें रहेगा। हाँ, मैनेज करने के लिए, आपका जो स्ट्रेस मैनेज है, करने के लिए, टेंशन है, आपकी कोप एंजाइटी अप, हाँ, और सारा फुल बॉडी प्रॉब्लम्स का जो को। ये है, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, यस, बॉडी एंड माइंड को हेल्दी रखने के लिए। ये प्रेगनेंसी का लास्ट में क्या होगा पता एंड फॉर द नहीं, बेबी हो ऑल्सो, सकता कि है सी बेबी भी सेक्शन आपका भी हो हेल्दी सकता ही है। पैदा हो। हाँ, हाँ, ये हेल्दी सब प्रेगनेंसी के इंस्ट्रक्शन लिए है। बताना रहेगा। नॉर्मल या करने एंड के लिए ट्रस्ट, माय कॉन्फिडेंस होना माय चाहिए। बेबी इज नाजिया सुपर हुसैन, एक्टिव, प्लीज सुपर स्विच एक्टिव। ऑन योर कैमरा। यू वोंट बिलीव, माय बेबी इज सुपर एक्टिव। वो सब मेरी वेरी गुड। प्रेगनेंसी के योगा का ही असर है। इज वेरी वेरी एक्टिव, वेरी एक्टिव। हम तो, वो मेरा मेरे साथ प्रेगनेंसी में भी मैं कभी कुछ कभी नहीं खा पाई। पहला 3 महीना सिर्फ सिर्फ उल्टी एंड वॉमिटिंग। उल्टी, हाँ, सिर्फ उल्टी की है, कुछ भी खा नहीं पाए 3 महीना। और उसके बाद 5 महीने तक मेरा वो उल्टी का जो ये है वो सेशन जारी रहा। सुबह एक वॉमिट का सेंसेशंस आते रहते हैं। हाँ, वो सुबह एक टैबलेट लेते थे और रात को भी लेना पड़ता था, क्योंकि खाने के बाद ही वो उल्टी का थोड़ा ये रहता होता था। हाउ ओल्ड योर ये बेबी इज? हाँ, आपका कितना बड़ा 14 years, बहुत दिन पहले ये जर्नी हुआ था, 14 years बैक। इवन आई हैड अ वेरी स्मूथ प्रेगनेंसी, कोई नौजिया नहीं आई, मतलब सब बोलते हैं वॉमिट, मेरे को एक वॉमिट नहीं हुआ, मैं इतना ये मेरा घूमती जो थी। दीदी है उसका कुछ नहीं हुआ था, दीदी एकदम नॉर्मल था। यस, इट्स और लाइक मेरा, मैं लक। वॉमिट करते किसी का करते होता बाप है, रे। किसी का नहीं। मैं चाह रही थी कि मेरे को नॉर्मल डिलीवरी हो, तब मैं इतना ज्यादा योगा नहीं करती थी, ठीक है करती थी, इतना नहीं करती थी।
मैं 9th मंथ में भी आई यूज टू वॉश द क्लोथ्स, नीचे बैठ के मैं बाथरूम धोती थी कि मेड्स लोग भी तो सब काम करती हैं तो मेरा भी नॉर्मल हो जाएगा, बट नहीं हुआ नॉर्मल, सी सेक्शन हुआ, बट आई वाज वेरी सुपर एक्टिव एंड सब कुछ करती थी। सो ये ये Same वो भी with नेवर। me भगवान के also. हाथ में है, कुछ चीज हमें सरेंडर करना है ऊपर वाले से। Yes, देयर and इज वन even सुप्रीम every पावर, pregnancy ये भी is उसको different. बताना है कि देयर इज वन सुप्रीम पावर इज देयर, तो उसके ऊपर भी कुछ रहना है, उसके उसके ऊपर भी कुछ रखना है, वो हमें सही राह पे ही लेके जाएंगे। लेके जाएगा, yes. नाजिया हुसैन, हाँ, प्लीज, आई वांट टू सी यू। okay हेलो, now. अच्छा मैम, ऐसे स्विच ऑफ करके ये देंगे क्या, एग्जाम देंगे क्या? सुनाई नहीं दे रहा, अभी सुनाई। ऐसे कैमरा स्विच ऑफ करके एग्जाम देना है क्या? अभी अच्छा, एग्जाम में ना तुम लोगों को कंडीशन दिया जाएगा, एक एक कंडीशन दिया जाएगा, उसके ऊपर तुम लोगों को बताना है कि क्या क्या कैसे कैसे तुम यौगिक अनुसार, योगा के अनुसार कैसे कैसे उसको रिकवरी कर सकते हो, कैसे कैसे केयर सीकर्स को देना है सो टॉपिक्स क्या? सारा वो हाँ, वो सारा जो नेक्स्ट वीक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीक हम थर्ड ट्राइमेस्टर कवर करेंगे, थर्ड ट्राइमेस्टर को जो आसनास है वो कवर करेंगे, और ये जो टॉपिक्स है, ये कंडीशंस, ये सारा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। मैम कंडीशंस इफ पॉसिबल आप संडे को अगर करवाएं तो, बिकॉज सैटरडे बहुत बार क्लासेस रहती है तो लाइव सेशन नहीं अटेंड हो पाता है, सो इट वुड बी बेटर अगर संडे को ही डिस्कशन हो। ठीक है, हम ये कर रखेंगे संडे पर, बहुत ज्यादा है ना, 2 दिन रख सकता है, नहीं सो तो हमें नेक्स्ट वीक डिलीवरी एक्सटेंड हुआ करेंगे। तो एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। नहीं तुम इधर, अच्छा नेक्स्ट क्लास में ही बताना, ठीक है? तब बहुत सारा स्टूडेंट्स भी रहेंगे, ठीक है? तब सेशन एंड करते हैं अभी, चलो क्लोजिंग प्रेयर कर लेते हैं। Join your palms, straight your spine. Om Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya। Om Shanti Shanti Shanti। Thank you. Bye bye. Bye everyone. Bye. Bye everyone. Bye.